बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ में हूं शमशाद मांगट। आप जानते हैं कि खालिस्तान तहरीक जो है मुसलसल जोर पकड़ती जा रही है और एक अरसा दराज से खालिस्तान तहरीक के लिए सिख बरादरी जो है वो सरगर्म है। इसके लिए इटली में भी रेफरेंडम हुआ, बरतानिया में भी रेफरेंडम हुआ। बरतानिया में जब रेफरेंडम हुआ तो वहां की हुकूमत चूंकि आज़ादी इजहार राय पे यकीन रखती है, तो बरतानवी हुकूमत ने बावजूद इसके कि भारतीय हुकूमत ने रुकावटें डाली थी, लेकिन बरतानवी हुकूमत ने उसको नजरअंदाज करके सिखों को काफी सहूलतें दी थी। और सिख बरादरी का रेफरेंडम जो बरतानिया में हुआ था बहुत ही जबरदस्त हुआ था। और फिर उसका अगला मोर्चा जो है वो सिख बरादरी ने जाके संभाला इटली में। इटली में भी नरेंद्र मोदी के जो हरकारे हैं उन्होंने बड़ी कोशिश की कि इस रेफरेंडम को नाकाम बनाया जाए, लेकिन वहां भी सिख बरादरी का ये रेफरेंडम कामयाब रहा और लाखों सिखों ने खालिस्तान जो कि एक अलग मुल्क वो बनाना चाहते हैं उसके हक में ये वोट डाला था। अगरचे से खालिस्तान तहरीक जो है उसने नींदें उड़ाई हुई है नरेंद्र मोदी और पूरी सरकार की, भारतीय सरकार की। वो किसी ना किसी तरीके से इस तहरीक को कुचलना चाहते हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि ये तहरीक जो है बैरून मुल्क चल रही है, खासतौर पे ऐसे ममालिक में चल रही है जहां पे आजादी इजहार राय को लोगों का हक समझा जाता है। और अब सिख बरादरी ने ये दमादम मस्त कलंदर जो है वो टोरंटो यानी कनाडा में करने का ऐलान किया है। वहां पे हजारों सिख पहले से मौजूद हैं, बल्कि लाखों सिख जो है वहां से पहले से मौजूद हैं। और गुज़िश्ता रोज जो उन्होंने एक वीडियो जारी की है वो भी देख लें, और उन्होंने अपना नक्शा भी खालिस्तान तहरीक का, खालिस्तान मुल्क का जो जारी किया है वो भी देख लें। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ VOTING ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾੜਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਜਰਨੀ ਫਰਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰਾਕਟ ਟੂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ। ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾੜਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾੜਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। 18 ਸਤੰਬਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵਾ। ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਕੌਲੋਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਲੀ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਉਹਦੀ ਡੈਸੀਕ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। My name is Thararin and from Canadian Pakistani Narrative. You were talking about that in Punjab people are being forced upon. So as we know about Kashmir, that like over 75 years there's been a lot of human right violation. Are there any human right violation in Punjab right now which you're considerably like scared for, like any physical human right violations, because you were talking about the economic rights and social rights and political rights, but are they in any sort of a physical danger in that city or in province of Punjab? In the last 30 days 14 ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈ ਉਹ UAP ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਚਰ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੈ। ਔਰ ਮੋਸਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ this is being accused but nobody has a right to kill anyone, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਜੱਜ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰ ਦੇਣ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ प्लस खालिस्तान रेफरेंडम एक्टिविस्ट के उत्ते हो रही हैं एंड वी आर डॉक्यूमेंटिंग एवरीथिंग। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि खालिस्तान तहरीक के जो रहनुमा हैं वो 18 सितंबर को टोरंटो में ये रेफरेंडम करवाने का इरादा रख और इसके लिए तेजी से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। और सिख बरादरी के जो लीडर हैं उनका ये कहना है कि हमें पूरी उम्मीद है कि जस्टिन ट्रूडो जो वज़ीर आज़म हैं कनाडा के, वो उनसे भरपूर तावन करेंगे, क्योंकि सिख बरादरी जो है वो काफ़ी मौसर है कनाडा में
और जस्टिन ट्रूडो की हर कामयाबी में सिख बरादरी ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। और दूसरी तरफ अगर भारत में देखें तो इस वक्त सफ़े मातम बिछी हुई है और नरेंद्र मोदी जो है वो अपने तमाम तर हथकंडों के जरिए चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से सिख बरादरी की इस मूवमेंट को रोका जाए, इस तहरीक को रोका जाए। और नाज़रीन, आपको याद होगा कि गुज़िश्ता बरस सिखों ने ट्रैक्टर ट्रालियों पर बैठ के किसानों ने जो एक तहरीक शुरू की थी किसानों के हकूक के लिए, उसमें भी बेशुमार सिखों ने कुर्बानियां दी थी। और कहा जाता है कि 1000 से ज़ायद सिखों को नरेंद्र मोदी सरकार ने जो है बेदर्दी से कत्ल कर दिया था और कई लोग जो है माजूर हो गए थे, बेशुमार जख्मी हुए थे। यानी सिख समझते हैं कि उनका खून ये रायगाह नहीं जाएगा, किसानों ने जो कुर्बानियां दी हैं वो रायगाह नहीं जाएंगी। लेकिन सिख बरादरी की तरफ से एक इल्ज़ाम और भी आयद किया गया है कि खालिस्तान का जो नक्शा है नरेंद्र मोदी ने जानबूझकर मक्काराना तरीके से उसको चेंज किया है, उसमें काफी ज्यादा तब्दीलियां की हैं। और खालिस्तान का नया नक्शा जो सिख बरादरी ने टोरंटो से जारी किया है उसमें वो शहर दिखाए गए हैं जो पहले से खालिस्तान सूबे में या खालिस्तान मुल्क में शामिल थे। तो नाज़रीन, जो नया नक्शा सामने आया उसके मुताबिक सिखों का यह कहना है कि ये शहर जो है वो खालिस्तान का हिस्सा होंगे। वो मैं उसकी तफसील आपको बताता हूँ। सिख रहनुमाओं का यह भी कहना है कि भारतीय हुकूमत ने भारतीय पंजाब का नक्शा भी एक साजिश के तहत बदल दिया है। खालिस्तान के क़याम के हवाले से हमारा दावा है कि जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, बठिंडा, लुधियाना, अमृतसर, होशियारपुर, चंडीगढ़, करनाल, डेराडून, मुजफ्फरनगर, गढ़गांव, भरतपुर, मुरादाबाद, मोतीपुर, नैनीताल, शाहजहांपुर और सीतापुर तक के इलाके हमारे खालिस्तान का हिस्सा हैं, जबकि हमारा कैपिटल शिमला होगा। और नाजरीन, ये भी बड़ी अहम बात है कि बड़ी तादाद में भारतीय पंजाब से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की कनाडा आमद के हवाले से पूछे गए एक सवाल में सिख रहनुमाओं ने कहा है कि ये हमें इल्मी और मुआशी तौर पर मजीद मजबूत बना रहे हैं। हमारे स्टूडेंट दुनिया में कहीं भी चले जाएं, उनके दिल अपनी धरती माँ के लिए ही धड़कते हैं। और हमें उम्मीद है कि भारतीय पंजाब से आए हुए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी 18 सितंबर को टोरंटो में होने वाले रेफरेंडम में बड़ी तादाद में अपना वोट इस्तेमाल करेंगे। सिख रहनुमाओं का यह भी कहना है कि भारतीय हुकूमत ने भारतीय पंजाब का नक्शा भी एक साजिश के तहत बदला। खालिस्तान के क़याम से हमारा दावा है कि जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, बठिंडा, लुधियाना, अमृतसर, होशियारपुर, चंडीगढ़, करनाल, डेराडून, मुजफ्फरनगर, गढ़गांव, भरतपुर, मुरादाबाद, मोतीपुर, नैनीताल, शाहजहां और सीतापुर तक के इलाके शामिल हैं और हमारे खालिस्तान का हिस्सा हैं, जबकि हमारा दारुल खिलाफा जो है वो इटली होगा। तो नाज़रीन, सिख फॉर जस्टिस नामी तंजीम के रूह रवां बैरिस्टर गुरप्रीत सिंह पुन्नू और कौंसिल ऑफ खालिस्तान के सदर डॉक्टर बख्शीश सिंह सिंधु ने गुज़िश्ता रोज कनाडा भर में रेफरेंडम बराए खालिस्तान कराने का ऐलान किया था। और नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि सिख रहनुमाओं का यह भी कहना है कि नरेंद्र मोदी बिला वजह पाकिस्तान पे इल्ज़ाम डालता है और ISI को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराता है। हालांकि हमारा हेडक्वार्टर अमेरिका में है, जहां पे बैठ के हम खालिस्तान तहरीक को चला रहे हैं। और अगर नरेंद्र मोदी में जुर्रत है तो फिर वो CIA पे इल्ज़ाम लगाए या फिर अमेरिका पे इल्ज़ाम लगाए। लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी के पास ना इतनी हिम्मत है ना जुर्रत है, इसलिए वो आसानी के साथ अपनी अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा देता है। हालांकि हमारा सारा सिस्टम अमेरिका और कनाडा से चल रहा है और वो दिन दूर नहीं है जब हम अपना मुल्क खालिस्तान बनाने में कामयाब हो जाएंगे। नाजरीन, जो खालिस्तान तहरीक है वो दिन ब दिन, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि बड़ी मौसर होती जा रही है और नरेंद्र मोदी के लिए परेशानी भी यही है। चूंकि 1000 से ज़ायद भारतीय किसानों को मारने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी कामयाब नहीं हो सके थे कि किसानों को पीछे हटाया जा सके और सिखों को पीछे हटाया जा सके। सिख रहनुमाओं ने यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि भारतीय पंजाब में सिखों की नस्ल कशी की जा रही है। और इसमें तो कोई शक नहीं है कि भारत में सिर्फ हिंदुओं के सिवा बाकी जितनी भी अकवाम वहाँ पे बसती हैं, सबकी नस्लकशी की जा रही है, जिसमें सिख भी शामिल हैं और मुसलमान भी शामिल हैं। तो नाजरीन, 18 सितंबर को ये टोरंटो में एक बड़ा जो है रेफरेंडम होगा। यकीनी तौर पे 18 सितंबर तक नरेंद्र मोदी के लिए सोना हराम होगा। नरेंद्र मोदी के लिए ज़रूरी होगा कि वो नींद की गोलियों का बंदोबस्त करे। शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।